Once again, very cozy morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School, and I'm your social science teacher. So, kids, in our previous class, we discussed about some of the bhakti movements. We discussed about some of the lords and lordesses, and the evolution happened during time. Okay, now we talked about the philosophies also. We talked about some of the philosophers like Shankaracharya, Ramanujan, after that Baswana, and saints from Maharashtra saints of Maharashtra who were the devotees of Vithala Dev. Nathpanthis, yogis, adis, yogis, siddhas, we talked about them also. Now, next topic is Islam and Sufism. The sons had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other's. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. So, Sufis are very much similar to the sons. So they adopted many ideas of from each other. Sufis were Muslims. Mystics and mystics. What do you mean by mystics? Mystics means you can say ki self-surrenders, the person who self-surrender. Okay, that is known as mystic. So Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God. उन्होंने किस चीज को emphasize किया है? They emphasized love, प्यार को, और गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, गॉड के प्रति जो डिवोशन है, उनकी जो आस्था है उस चीज के लिए. एंड जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए एक कंपैशन, भाईचारा, इस चीज को उन्होंने क्या किया है, एम्फसाइज किया है. इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट monotheism or submission to one god. Monotheism means submission to one god. इस्लाम किस चीज को प्रोपोगेट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है या बढ़ावा देता है? स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म की भगवान जो है एक ही है, सबमिशन टू वन गॉड, वी बिलीव इन ओनली वन गॉड. इन द 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, शरियत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम. बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो है अपने अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं बताए थे ऑफ द हॉली लॉ, शरियत और इस्लाम की जो थ्योरी थी उस चीज को लेके. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimensions that favored a more personal devotion to God. अब धीरे धीरे ये जो इस्लाम था, ये जो रिलीजन था, इस्लाम रिलीजन जो है वो धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था. जो एडिशनल जितने भी डायमेंशंस थे कि कुछ लोग जो है अपने गॉड को क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, उनके लिए डिवोटी बन रहे थे. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. जो सूफीज थे काफी इस चीज को, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो काफी रिचुअल्स वगैरह को भी मानते थे. उनकी जो डिमांड की हमें रिचुअल्स वगैरह करने चाहिए, हमें गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो इस चीज को काफी रिजेक्ट करते थे. They sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world. उनके लिए जो भगवान के लिए कहा था कि हमें भगवान के लिए प्यार होना चाहिए, ठीक है, बस यही उनके लिए इम्पोर्टेंट था. Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. बहुत सारे fables हो गए, ठीक है. fables एक टाइप की लिखावट को बोलते हैं, anecdotes भी आपका टाइप का लिखावट है, ठीक है, राइटिंग पैटर्न को बोलते हैं anecdotes, ठीक है. Interesting story about a real person, or you can say very रियल पर्सन, और कोई रियल इंसिडेंट हो रहा है तो उसकी जो स्टोरी होती है उसको एंसिडोट्स बोलते हैं. तो फेबल्स इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग. तो
फेबल्स हो गए, एंसिटोड्स हो गए, इन सबको काफी क्या देते थे वो, अपना जो फीलिंग्स था इनके थ्रू एक्सप्रेस करते थे. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Sadi. These were like some famous Sufis from Central India, Ghazali, Rumi, and Sadi. Like the Nathpanthi, Siddhas, and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. We can train our heart if we can train our heart if we want to see this beautiful world in a different way. They developed elaborate methods of training using zikr. Zikr means chanting of a name or sacred formula. ठीक है, किसी अल्लाह का या भगवान का जो नाम है उनको बार बार जपना. ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज किया था जिक्र. कंटेम्पलेशन, समा को सिंगिंग बोला गया है. कंटेम्पलेशन, contemplation means the action of looking thoughtfully at something for a long time. आप जब किसी भी एक्शन को बहुत ही एकदम thoughtfully मतलब देखते हो और उसके बारे में जब सोचते हो, विचारते हो, उसको contemplation बोले. रक्स, डांसिंग को बोला गया है. डिस्कशन ऑफ पैराबल्स. पैराबल्स क्या होता है? पैराबल्स का मतलब होता है parables means when a simple story used to illustrate a moral or spiritual. ठीक है, कोई स्टोरी है, जैसे मॉरल वैल्यू पढ़ रहे हो तो मॉरल वैल्यू के थ्रू आप बहुत सारी वैल्यूज क्या करते हो, अपने अंदर लेकर आते हो ना, लेसन सीखते हो, स्पिरिचुअल लेसन सीखते हो, तो उसको हम बोलते हैं पैराबल्स, जब स्टोरी के थ्रू आप सीखते हो. ब्रेथ कंट्रोल एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पिर. जो मास्टर होते थे, चीफ होते थे, उनको पिर कहा गया है. Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different तरीका of instruction and ritual practice. और सब लोग जो है अपने अपने तरीके, अपने अपने मेथड्स को यूज किया करते थे ritual practices में. Okay. So now just look at this figure, mystics in asceticy. Asceticy means asceticy, you can say asceticy हिंदी में तो जैसे क्या साइकोलॉजी बोल सकते हो asceticy को, या फिर बोल सकते हो जब यस फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, दैट इज एस्कैटसीज. तो कैसे जो मिस्टिक्स है, ये जो सूफी सेंट्स वगैरह हैं, वो कैसे अपनी हैप्पीनेस को जो है इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज को देखो. जस्ट डांसिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज लाइक मिस्टिक्स इन एस्कैटसी. In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in 15th and 16th centuries. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. अब कश्मीर में सूफिज्म जो है 15th और 16th सेंचुरी में काफी फ्लरिश हुआ था. शेख नरुद्दीन वाली, जिसको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उनका काफी इम्पैक्ट पड़ा था कश्मीर के लोगों पे. एंड उनके जो श्राइन्स है, उनकी मूर्तियां जो है, उनके जो पिलग्रिमेजेस बोल सकते हो, ठीक है, काफी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पिलग्रिमेजेस, श्राइन्स जो हैं बने हुए हैं, श्राइन्स हैं जो ऋषि सेंट्स को डेडिकेट करते हैं. आज भी हम काफी पार्ट्स में उन्हें हमें देखने को मिलते हैं. नाउ a page, just look at this figure 5, a page from a manuscript of the Quran, Deccan, late 15th century. कुरान का एक पेज है, ये देखो. ओके, मैन्युस्क्रिप्ट है, दिस इज आल्सो अ मैन्युस्क्रिप्ट. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ. तो मोहम्मद गौरी के जो गवर्नर, जो बेटे थे, गवर्नर थे आपके, उन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया. मोहम्मद गौरी के जो 5 गवर्नर थे, उनको उन्होंने दिल्ली में 5 पर्टिकुलर प्लेसेस दे दी गई थी.
तो उसमें से जो फर्स्ट था स्लेव डायनेस्टी, यू कैन से स्लेव डायनेस्टी में उन्होंने क्या किया था, यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत जहां से स्टार्ट होता है आपका लेट 12th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, 11th सेंचुरी ऑनवर्ड सॉरी, तो यहाँ से जो है बहुत सारे लोग जो सेंट्रल एशिया से जो है हिंदुस्तान में आके, प्रेजेंट डे इंडिया पाकिस्तान को बोला गया है, हिंदुस्तान में आके रहने लग गए थे। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, काफी सारे सूफी सेंटर्स जो हैं इंडिया में स्टैब्लिश होने लग गए थे, डेवलप होने लग गए थे। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, चिश्ती सिलसिला बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, काफी लोग मानने लग गए थे। It had a long line of teachers like Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Bandana was Gizud Daraz of Gulbarga. These are like some of the famous Chistis. The Sufi masters held their assemblies in their khanaqs or hospices. Hospices क्या होता है? House of rest for travelers, specially one kept by a religious order. ठीक है, जब कोई भी ट्रैवल करता है तो उनके लिए जो रेस्टिंग रूम बनाया जाता है, घर बनाया जाता है रेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसे हम हॉस्पाइस बोलते हैं। खानाकाज में क्या है, सूफी मास्टर्स जो है अपनी असेंबलीज को हेल्ड करते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीस कनाक। बहुत सारे लोग जो थे, चाहे वो नोबल हो, रॉयल हो, नोबिलिटी हो, मिनिस्टर्स हो, राजास हो, प्रिंसेस हो, बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी क्या है यहाँ पे आके खानाक्स में आके रहने लगते थे। They discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems, or simply attended the music and dance sessions. ठीक है, वो अपने spiritual matters को discuss करते थे, जो religious matters थे। They discussed all those religious matters, और जितनी भी सेंट्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे, जो भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आते थे, या फिर कभी कभी खाली म्यूजिक और डांस सेशंस लेने भी आ जाते थे। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. The tomb of or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. Now, बहुत सारे जो लोग थे, often people attributed Sufi masters, जो भी Sufi masters होते थे, उनको कैसे मानते थे? They attributed Sufi, they assigned, or you can say they thought like Sufi masters has this quality, has this miraculous powers with them, has this quality of miracle. They have this miraculous power कि वो दूसरों की जो दुख है, दूसरों की जो इलनेस है या जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको क्या कर सकते हैं, वो रिलीव कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टॉम या दरगाह, किसी भी सूफी सेंट का टॉम या दरगाह जो होता है, एक पिलग्रिमेज मतलब एक स्पिरिचुअल प्लेस मानी जाती है, जहां पे बहुत सारे लोग जो है अपनी आस्था लेके आते हैं। ठीक है, now just look at this. Jalaluddin Rumi was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an excerpt from this work. He was not on the cross of the Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the height or in the lowlands. I went to the Kaaba of Mecca. He was not there. I asked about him from Avicenna, the philosopher. He was beyond the range of Avicenna. He was beyond the range of Avicenna. I looked into my heart. In that his place, I saw him. He was in no other place. Now जलालुद्दीन रूमी जो है वो बोलते हैं कि हम एक सूफी पोइट रहे हैं ईरान से, एंड ही रोट इन पर्शियन, और उन्होंने लिखा है कि मैंने क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस को भी देखा है, वहां पे भी नहीं है, मैंने हिंदू टेम्पल्स को भी देखा है, मैंने वहां पे भी नहीं देखा, और मैंने काबा मेका में भी गया हूँ, काबा भी गया हूँ, वहां पे भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुआ। मैं बहुत सारे फिलोसफर्स से भी मैंने क्या किया, बातें की है, बट मुझे वहां भी जो है भगवान नहीं मिले। बट व्हेन आई लुक्ड इनटू माय हार्ट I saw him. He was in no other place. वो हमारे अंदर है, वो और कहीं नहीं है।
ठीक है. So this is one of the one of an excerpt from the work of Jalaluddin Rumi. Now, new religious developments in North India. Okay, new religious developments in North India. The period after the 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India. Bhakti movement, I already told you about the Bhakti movement. When you surrender yourself fully to God, when you surrender yourself fully to God without expecting anything, that is known as Bhakti. Or 13th सेंचुरी में इंडिया में हमें काफी भक्ति मूवमेंट्स जो है काफी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिली थी. दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and the Nath Panths, Siddhas and Yogis influenced one another. ठीक है, all these types or all these things, all these religious developments happened in the 13th century. Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, Bhakti, different strands of bhakti, Nath Panths, Siddhas, Yogis, all everyone influenced one another. एक दूसरे को काफी influence किया. People were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders, and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. अब हमने जो कुछ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई थी, नए न्यू टाउन्स बनने लगे थे, न्यू किंगडम्स बनने लगे थे, लोग दूसरे जो प्रोफेशंस को क्या करने लगे थे, अडॉप्ट करने लगे थे. तो बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो आपके क्राफ्ट पर्सन है, पेजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, ये जो न्यू सेंट्स वगैरह होते थे ना, उनके आइडियाज को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे. थ्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, टू इकट्ठा होना या बहुत सारे लोग, टू बी इन क्राउड में आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रॉन्ड. भीड़ को बोलते हैं थ्रॉन्ड, ठीक है, क्राउड को, ठीक है. फिल और यू कैन से फिल और बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और बी इन सराउंडिंग्स, थ्रॉन्ड. तो बहुत सारे लोग जो है भीड़ इकट्ठा होती थी इनके आइडियाज को सुनने के लिए. Some of them, like Kabir and Baba Guru Nanak, rejected all orthodox religion. Others, like Tulsidas and Surdas, accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. Tulsidas conceived of God in the form of Rama. Tulsidas' composition, the Ramcharitamanas, written in Abdi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as a literary works. अब देखिए, जो कबीर दास जी थे या और आपके बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे उनको क्या किया था, डिनाई किया था, रिजेक्ट किया था. अब ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जिसको आप ट्रेडिशनल बोलते हो या फिर जनरली एक्सेप्टेड रूल्स और बिलीव्स ऑफ अ रिलीजन, ठीक है, उसको हम कंजर्वेटिव हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, या जो पहले से जो मान्यताएं थी, बिलीव्स थे, उसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं. तो गुरु नानक जी और जो कबीर दास जी थे, वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को क्या करते थे, वो रिजेक्ट करते थे. एंड जैसे तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस को भी क्या है, लिखा है, और उन्होंने कहा है जितने भी एग्जिस्टिंग बिलीव्स थे या प्रैक्टिसेस थे, इन सबको उन्होंने क्या किया है कि ये सारी चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए. दे वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल, कि ये जितने भी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, सबको इनके बारे में पता होना चाहिए और सब इनको माने, एक्सेसिबल होना चाहिए. And he conceived, Tulsidas conceived of God in the form of Rama. राम के फॉर्म में उन्होंने भगवान को जाना. एंड उन्होंने तो रामचरितमानस अवधी में लिखी है, उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है. एंड उनका ये एक एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन, उनकी जो भक्ति थी, उनका जो डिवोशन था, उसका भी एक्सप्रेशन था, और उनका जो लिटरेरी वर्क था, जो ये राइटिंग थी, उसका भी एक एग्जाम्पल था. सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा. सूरदास बहुत ही पैशनेट डिवोटी था, बहुत ही enthusiastic zeal, ardent devotee था कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का. His compositions compiled in the
सूर सागर, सूर सरवाली, साहित्य लहरी, एक्सप्रेस इज डिवोशन। जो सूरदास के जो एक्सप्रेशंस थे, उनका जो जितनी भी कॉम्पोजिशंस थी, जितनी भी पोम्स, जितने भी स्टोरीज, जितने भी उन्होंने जितने भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने बनाया है, उन सबको ये जो सूर सागर, सूर सरावली एंड साहित्य लहरी में क्या किया है, उसको एक्सप्रेस किया है। Also contemporary was Shankara Deva of Assam, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. Shankaradeva, he composed he was the devotee of Vishnu, and he composed various poems and plays in Assami language. He began the practice of setting up naam ghars or houses of recitations and prayer, जहाँ पे हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान को प्रे कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने क्या है, हाउसेस को बिल्ड करवाया, जिसको नाम घर बोला गया है। A practice that continues to date, आज तक ये इस प्रैक्टिस को मानी जाती है। This tradition also includes saints like Dadu Dayal, Ravidas and Mirabai. दादू दयाल, मीराबाई, रविदास भी है। मीराबाई was a Rajput princess married into the royal family of Mewar in the 16th century. मीराबाई became a disciple of रविदास। रविदास की जो है सपोर्टर, या फिर आप बोल दीजिए कि डिसिपल, फॉलोवर। डिसिपल का मतलब होता है फॉलोवर। रविदास की फॉलोवर बन चुकी थी। A saint from a caste considered untouchable, अनटचेबल कास्ट से वो बिलोंग करते थे रविदास, और उनकी फॉलोवर बन गई थी। She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. वो कृष्णा की काफी बड़ी भक्त थी, डिवोटी थी, और उन्होंने बहुत सारे भजन को कंपोज किया है, जिसमें उनका जो डिवोशन था, उनकी जो भक्ति है, वो शो की जाती है। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. जो upper caste norms थे, upper caste की जो मान्यताएं थी, उनके songs को उन चीजों को भी क्या किया है, चैलेंज किया है, एंड बहुत पॉपुलर है प्रेजेंट डे राजस्थान और गुजरात में। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung. They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually, the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experiences. Thus, the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. जो important बात थी इनके वर्क की, जो यूनिकनेस थी, कि उन सब ने अपनी जो जितने भी कॉम्पोजिशन थे अपनी रीजनल लैंग्वेज में किया है, और उन सबको गाया भी जा सकता है, और काफी पॉपुलर थे ये जनरेशन टू जनरेशन। इवन आज तक हम देखते हैं कि उनके गानों को हम जो है गाते हैं और गुनगुनाते हैं। और काफी लोग जो हैं आज के टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, संत वगैरह जो हैं उनके सॉन्ग को क्रिएट करते हैं, अपना खुद का म्यूजिक उसमें डालते हैं। ये जो है हमारे लाइफ की जो है एक हमारे लाइफ का जो है पार्ट बन चुका है। बियॉन्ड द रानास पैलेस, ठीक है। अब देखिए मीराबाई ने जो है मीराबाई का एक कॉम्पोजिशन है, राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ, आई हैव लेफ्ट योर टाउन। राणा जी इज द टर्म यूज फॉर हिज हस्बैंड। राणा जी जो टर्म है उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए यूज किया, और बोला कि ये जो शर्म है, आपको जो मेरे साथ शर्म आती है, ठीक है, मैं रविदास की डिसिपल हूँ, मैं कृष्णा को फॉलो करती हूँ, तो ये सब जो है मैं छोड़ के जा रही हूँ। ये जो आपका प्रिंसली लाइफ है, ये झूठी दिखावटी जो जीवन है, उन सबको मैं छोड़ के जा रही हूँ। मैंने आपका घर, आपका टाउन सब कुछ छोड़ दिया। एंड ये राणा, व्हाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, शत्रुता, फीलिंग ऑफ एनिमी, ठीक है, एनिमी वाली जो फीलिंग होती है उसको बोला जाता है। तो एनिमिटी अगेंस्ट मी, फिर भी आपको मेरे से शत्रुता क्यों है। राणा, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रिंक इट लाफिंग।
आपने मेरे को जहर से भरा हुआ एक प्याला दिया, मैंने उसे पी लिया, फिर भी और हंसते हंसते पी लिया. राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, एंड येट राणा व्हाई यू हैव केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी. तुमने मुझे बहुत सी कोशिशें की हैं मुझे खत्म करने की, मुझे डिस्ट्रॉय करने की, फिर भी आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? आप मेरे अगेंस्ट क्यों हो? मेरे से शत्रुता क्यों है आपकी? Okay, so this is one of the this is a song composed by मीराबाई, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को बताया है कि कैसे उनके फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है. An important contribution of Bhakti Sense was towards the development of music. म्यूजिक का जो उस टाइम पे डेवलपमेंट था काफी अच्छा था. ठीक है, लोग जितने भी लोग थे, जो भी सेंस थे, नॉर्मली जो भी कंपोजिशन होती थी वो म्यूजिक के फॉर्म में होती थी. Jayadev of Bengal composed the Gita Govinda in Sanskrit, each song composed in a particular rag and tal. A significant impact that these saints had on music was the use of bhajan, kirtan, and abhang. These songs, which emphasized on emotional experience, had a tremendous appeal to the common people. ठीक है, अब उस टाइम पे म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट भी था. लोगों जो सेंस थे उनका जो म्यूजिक पे इम्पैक्ट था काफी था, क्योंकि वो पहले से ही भजन, कीर्तन और अभांग जो है करते आ रहे थे. अभांग भी यू कैन से कि पोम्स को जब हम रिसाइट करते हैं तो उसको अभांग बोला जाता है. तो ये सारी चीजें वो पहले से ही करते आ रहे थे. तो सेंट्स का भी जो है काफी इसमें एम्फसाइज रहता था, काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है उनका भी. एंड दीज सॉन्ग्स व्हिच एम्फसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैड अ ट्रेमेंडियस अपील. ठीक है, ये जो सॉन्ग्स थे एक अलग ही उनका जो था कि कॉमन पीपल, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे, उनसे एक अपील की जाती थी. मतलब एक had a tremendous appeal to the common people कि आप जो है इस म्यूजिक के थ्रू what they did, इस म्यूजिक के थ्रू बहुत सारे लोग जो है काफी अट्रैक्ट होते थे और बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे इन्हें मानने लग गए थे. So this is all about today class. In our next class we will continue with the Kabir, Guru Nanak, and this foreign Martin Luther and Reformation. Okay, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class. Go through the chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know in my next class. I will clear your queries.